غریب عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدام۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد کو 39 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ فنڈ سینٹرل اسٹیرلائزیشن اور 7 ماڈل آپریشن تھیٹرز کی تعمیر پر خرچ ہوں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے الائڈ ہسپتال کو 39 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں، جس سے سینٹرل سیٹلائزیشن اور 7 ماڈل آپریشن تھیٹرز بنائے جائیں گے۔ منصوبہ میں 3 آرتھوپیڈک، 2 ناک، کان، گلا اور امراض جسم کے آپریشن تھیٹر کی تعمیر شامل ہے۔ ایم ایس الائڈ ہسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ سینٹرل سیٹلائزیشن مشین بھی فعال کی جا رہی ہے، جس کے لیے سول ورک شروع کر دیا گیا ہے۔ امید ہے 2 سے 3 ماہ میں آپریشن تھیٹر اور سینٹرل سیٹلائزیشن فعال ہو جائیں گے۔ یہ ایک اسکیم تھی جو 2019 میں منظور ہو گئی تھی، اور اس کا جو ہے نا 2019 میں فنڈز بھی مل گئے تھے انیشلی۔ پھر اس کے بعد کرونا کی وجہ سے یہ فنڈز واپس لے لیے گئے گورنمنٹ نے۔ اب پھر ہم نے تنگو دو کر کے کوشش کر کے 2021 میں فنڈ دوبارہ ریلیز کروائے، اور ریلیز کرنے کے بعد اب ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا سول ورک شروع ہو گیا۔ سینٹرل سیٹلائزیشن سے انسٹرومنٹ کو جراثیم سے پاک کیا جا سکے گا اور انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اس میں 2 منصوبے ہیں، ایک تو 7 آپریشن تھیٹرز ہیں، دوسرا ایک سینٹرل اسٹیرلائزیشن سسٹم ہے جو کہ الائڈ اسپتال کا وہ پرانا سسٹم تھا، اس کو اپ گریڈ کریں گے ہم، وہ جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپریشنز کے لیے، انفیکشنز کی پریونشنز کے لیے، جس میں ہم نے سینٹرل جو سی ایس ایس ڈی ہے، جو سینٹرل اسٹیرلائزیشن سسٹم ہے، وہ اگر ہاسپٹل کا ٹھیک ہوگا تو تمام طرح آپریشنز جو ہے نا ان کمپلیکیشن سے بچ سکیں گے، انفیکشنز وغیرہ سے۔ منصوبہ 2019 میں شروع کیا گیا تھا، جس کے لیے اب فنڈ جاری ہوئے ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ تبھی آپ کو بتائیں بجلی صارفین کا بڑھتا بوجھ، فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بڑا فیصلہ۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے نئے گرڈ بنانے کی منظوری دے دی۔ 2 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 سرکلز میں 8 نئے گرڈ سٹیشنز تعمیر ہوں گے۔ فیسکو صارفین کی تعداد 47 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ نئے کنیکشن کا اجرا بھی تیزی سے جاری ہے۔ حالات کے پیش نظر فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 8 نئے گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ نئے گرڈ سٹیشنز کی تعمیر پر 2 ارب 40 کروڑ روپے کی خطی رقم خرچ ہوگی۔ آئندہ سال نئے گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ 4 سرکلز میں نئے گرڈ سٹیشنز بنائے جائیں گے تاکہ فیسکو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی فراہم کی جا سکے اور ریکوری میں اضافہ ہو۔ نئے بننے والے گرڈ سٹیشنز میں چترو، فرائی مہاجر، کوٹ مومن، کوٹ سغرات سمیت سرگودا گرڈ سٹیشن شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد ریجن کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر۔ فیسکو کا نیلم جہلم سرچارج کی واپسی کے لیے ایک بار پھر خط۔ منظوری کے بعد فیسکو صارفین کو 2 ارب روپے واپس کیے جائیں گے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ نیلم جہلم اتھارٹی سے جیسے ہی پیسے واپس ہوں گے، صارفین کے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پکڑ صرف غریب کی۔ محکمہ سوئی گیس سرکاری محکموں کے خلاف کارروائی سے کترانے لگا۔ ڈویژن کے مختلف ادارے 11 کروڑ 51 لاکھ 83 ہزار روپے کے نادہندہ نکلے۔ پولیس اور ضلعی حکومت کے دفاتر محکمہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے 11 کروڑ 51 لاکھ 83 ہزار 926 روپے کے نادہندہ نکلے۔ گزشتہ کئی سالوں سے محکمہ سوئی گیس ان نادہندہ محکموں سے وصولی کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ آر پی او دفتر فیصل آباد اور ملحقہ پولیس بلڈنگز 15 لاکھ 55 ہزار کا نادہندہ نکلا۔ پولیس لائنز فیصل آباد 70 لاکھ 45 ہزار اور تھانہ نواں لاہور ٹوبہ 8 لاکھ کا نادہندہ ہے۔ کمشنر دفتر فیصل آباد میں نصب 1 میٹر 31 لاکھ، ڈی پی او ٹوبہ اور پولیس لائنز ٹوبہ کے 3 سوئی گیس میٹر 64 لاکھ روپے کے نادہندہ نکلے۔ اسپیشل برانچ فیصل آباد 57 ہزار، ڈی سی ٹوبہ دفتر 1 لاکھ 16 ہزار روپے کا نادہندہ ہے۔ ایس پی جھنگ دفتر بھی محکمہ سوئی گیس کا 20,730 روپے کا نادہندہ ہے۔ محکموں کے خوف سے محکمہ سوئی گیس میٹر کاٹنے سے بھی خوفزدہ ہے۔ سالانہ اربوں روپے کے فنڈز ملنے کے باوجود محکمہ جات یوٹیلیٹی بل ادا کرنے سے جان بوجھ احتراز برتتے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں گھر بنانے کے خواہش مند افراد سوچ سمجھ کر پلاٹ خریدیں۔ ضلع کونسل جھنگ کی حدود میں 7 ہاؤسنگ کالونیاں غیر قانونی نکلیں۔ گلبرگ سٹی، رحمان گارڈن، یونیورسٹی ٹاؤن، ایمان سٹی، ولی گارڈن کا ترقیاتی کام بھی غیر قانونی نکلا۔
घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद हो जाएं होशियार। झंग में 7 हाउसिंग कॉलोनियां गैर कानूनी होने का इंकशाफ हुआ है। सीओ जिला काउंसिल मोहम्मद अकरम भरवाना ने कार्रवाई करते हुए गुलबर्ग सिटी शोरकोट, बालूम सिटी शोरकोट, वली गार्डन शोरकोट, रहमान गार्डन चक रसूलपुर, ईमान सिटी चन्योट रोड, इतिहाद सुप्रीम सिटी चन्योट रोड और यूनिवर्सिटी टाउन को गैर कानूनी करार देकर खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। सीओ जिला काउंसिल झंग मोहम्मद अकरम भरवाना के मुताबिक इतिहाद सुप्रीम सिटी चन्योट रोड की जानिब से फीसों की अदायगी के बाद महकमाना काम किया जा रहा है, जबकि बाकी 6 डेवलपर्स की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सीओ के मुताबिक गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। 7 हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड लैंड सब डिवीजन्स ऐसी हैं जो इलीगल हैं और अनअप्रूव्ड हैं और जो पब्लिक में ऑपरेट कर रहे थे ये लोग, इनको हमने सेल परचेज जो है वो इन राइटिंग में थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो बैन कर दिए। सीओ जिला काउंसिल मोहम्मद अकरम भरवाना का कहना है कि कॉलोनियों के जिम्मे 3.5 करोड़ रुपए से जायद की फीस ताहाल वाजिबुल अदा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अभी आपको बताएं, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, FATF का हाउसिंग सोसाइटियों पर कावानीन का निफाज। दफ्तर कोऑपरेटिव हाउसिंग फैसलाबाद शहरियों का रिकॉर्ड फराहम करेगा। FATF की हाउसिंग सोसाइटियों पर कावानीन का निफाज कर दिया गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत, रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FATF की शराइत सामने आ गई। वजारत दाखिला की हिदायत पर कोऑपरेटिव हाउसिंग फैसलाबाद शहरियों का रिकॉर्ड फराहम करेगा। रजिस्ट्रार कोर्ट्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के डेप्टी रजिस्ट्रार से 4th शेड्यूल में मुलविस 1394 सोसाइटी मेंबरान का रिकॉर्ड मांग लिया। फैसलाबाद से 47, झंग से 57, चिन्योट से 21, टोबा टेक सिंह से 30 4th शेड्यूल में मुलविस शहरियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। नामजद अफराद के नाम, जायदादों समेत दीगर रिकॉर्ड फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी और डिविजनल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से झंग का दौरा। मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में जिला सदर शरीफ अंसारी, जिला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली ढद्दी, आबिदा बशीर, सदर लॉयर्स विंग एडवोकेट AD संदराना समेत दीगर वकला मौजूद थे। अकरम अंसारी और अयूब गादी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की जीत के अज़्म का इजहार किया गया। उनका कहना था कि 17 जुलाई को अवाम नून लीग के उम्मीदवारों का इंतखाब करके लीगी मैंडेट को फतह से हमकिनार करवाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जुलाई को फैसलाबाद के तमाम पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पूरे ना करने पर मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मेहर अवैस अरशद ने 18 जुलाई को फैसलाबाद के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन ने 18 तारीख को मुल्क गीर हड़ताल की कॉल दी है। 18 तारीख को फैसलाबाद भी मुकम्मल तौर पर तमाम पेट्रोल पंप शट डाउन किए जाएंगे। ये हम लोग ईद से पहले करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि अवाम ईद के दिनों में अपने घरों को आते जाते हैं और हम नहीं चाहते थे कि लोगों की खुशियां जो हैं वो हमारी वजह से बर्बाद हों। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के ओहदेदार जवेद कमर का कहना था, हुकूमत हमसे सरासर ज्यादती कर रही है। ओगरा की फीस 1 लाख तक पहुंच गई है। हमारी चीजें कोरिलेट नहीं करती, हमारी इकोनॉमिक्स आपस में कोरिलेट नहीं करती। आपका क्या है, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो बिजली सस्ती हो जाएगी, लेबर सस्ती हो जाएगी। या जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ओगरा के हवाले से गैस स्टेशन बंद है, गैस स्टेशन रेलिवेंट नहीं है। ओगरा लाइसेंस फीस पहले थी 50,000, अब हो गई है 1 लाख। स्टेशन बंद है। 18 जुलाई को पेट्रोल पंप्स बंद रहने से अजियत आवाम को ही उठाना होगी। देखना यह है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान कोई मामला तय हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, कॉटन पावर लूम्स की हड़ताल, कपड़े की कीमतें दोबारा बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। लूम्स के बाद रही सही कसर प्रोसेसिंग बंदिश ने पूरी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कॉटन पावर लूम्स का एहतजाज 22 जुलाई तक जारी है, जिसके असरात लोकल मंडी पर भी नुमाया है। लोकल मार्केट में ग्रे क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ की कम कीमतें दोबारा बढ़ने का खदशा है। कपड़े की शॉर्टेज के पेश नजर कीमतें बढ़ने का इम्कान है। ताजरों की जानिब से जल्द एहतजाज न खत्म होने की सूरत में कपड़े की कीमत बढ़ने का इंदिया दे दिया गया। लूम्स के बाद रही सही कसर प्रोसेसिंग की बंदिश ने पूरी कर दी। ताजरों के मुताबिक पावर लूम्स ओनर्स को सब्सिडी दी जाए, वरना मार्केट मुतासिर होगी। अगर यही कंडीशन रही, हमारा पावर लूम सेक्टर जो है इस वक्त बंद हो चुका है, तो मार्केटों में इस वक्त 15% कपड़े के रेट जो हैं वो कम हो चुके थे। यही अगर सेक्टर बंद हो जाता है, फिर ये 15-20% कपड़ा बढ़ जाएगा,
क्योंकि फिर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी। तो हुकूमत को चाहिए इनको बिजली में भी सब्सिडी दें और गैस में, हर चीज़ में सब्सिडी देनी चाहिए। इस वक्त लोकल मार्केट्स बहुत मुतासिर हैं। हुकूमत को फिलफौर इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के किसानों के लिए बड़ी मुश्किल। यूरिया खाद की फराहमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। सरकारी रेट 2200 रुपए जबकि ब्लैक में 3000 रुपए में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद के किसानों के लिए यूरिया खाद की फराहमी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार कर गया। किसानों का कहना था कि खाद मिल ही नहीं रही। कीमत 2200 रुपए है मगर 3000 रुपए में भी मुयस्सर नहीं। डीलर्स खाद फराहम करने से गरेजा हैं। मियां शहबाज शरीफ से हमें यही तवक्को थी कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई नाकस और फेल हो चुकी है। इंतज़ामिया भी ऐसे ही काम कर रही है। हमारे ज़िमीदार को जो इसका यूरिया का रेट 2200 कीमत है, 2200, हमें 3000 तक मिली है, 2700 2800। यहाँ जो ज़िमीदार मिलता है उसे वहाँ ज़िबा कर दिया जाता है। किसानों का कहना था कि हुकूमत को खाद के बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। कमाद समेत दीगर फसलों के मुतासिर होने का खदशा है। इससे कबल भी गंदम की फसल मुतासिर हो चुकी है। यूरिया की कीमत 2200 रुपया रेट है गवर्नमेंट की, और 3000 में वो मिल रही है। वो भी ब्लैक में मिल रही है। अगर वो पैसे ले लेते हैं तो जब मतलब पैसे पहले ले लेते हैं, जब लेने जाओ तो फिर वो चक्कर ही लगवाते हैं। तो लिहाजा ये हमारी इल्तिजा यही है गवर्नमेंट से कि यूरिया जो है खाद 2200 रेट है तो 2200 पे कम अज़ कम आवाम को मिले तो सही। ये तो 2200 छोड़ के 3000 में भी नहीं मिल रही, ब्लैक में दे रहे हैं वो सब। और किसानों को सब्सिडी दी जाए, जितनी हो सके सब्सिडी दी जाए, और यूरिया का रेट और ज़्यादा कम करें और कम अज़ कम इतना का रूटीन में लाएं कि हर किसान को आसानी से मिल सके। किसानों ने खाद बहरान का जिम्मेदार जिली इंतजामिया और महकमा ज़राअत को ठहराया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पीडीएमए का अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। बरसाती नालों, ड्रेनों और वाटर चैनल्स की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर पीडीएमए की जानिब से तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हालिया मॉनसून में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पीडीएमए की जानिब से जारी करदा मरासले में कहा गया है कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। बरसाती नालों, ड्रेनों और वाटर चैनल्स की 24/7 मॉनिटरिंग की जाए। तमाम इदारे आपस में मरबूत राबता रखें और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से वज़ा करदा प्लान ऑफ एक्शन पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब की जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और वासा हुकाम को अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम जरूरी मशीनरी फंक्शनल रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बायस नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस मोहल्ला गड़ा, डोल सिकंदर की सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब होता है काम हमारा। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है तो घुटनों तक पानी आ जाता। कारोबार पहले हालात आपके सामने, और उससे ये पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है। बारिश के पानी से पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है जब भी बारिश होती है इलाके में कई दिन तक पानी जमा रहता है। पहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने और सीवरेज पाइपलाइन की मुश्किल बुनियादों पर सफाई करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मोनीर, सिटी 41, चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह की मसरूफ तरीन शाहराह शहबाज चौक पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टेक सिंह की मसरूफ शाहराह शहबाज चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन गए, जिससे शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं, बाजार में दाखिल होना भी महाल है और इंतजामिया सोई हुई नजर आ रही है। सुबह से शाम तक यहाँ रिक्शे खड़े रहते हैं और गुजरगाह ही मुश्किल है। शहरियों का गुजरना बड़ा मुश्किल है और बड़ी तंगी होती है और हादसात का भी एहतमाल है कि किसी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। शहरियों का कहना है कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक एहलकार दफ्तरों में आराम से बैठे हुए हैं। इनके लिए कोई अलग पार्किंग होनी चाहिए। जब भी हम उधर जाते हैं तो एक अजीब सा रश होता है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का कहना है ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल और अवामी मुश्किलात का इजाला करने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अभी आपको बताएं, पंजाब भर में 790 वैक्सीनेटर्स की भर्तियां, 30,000 रुपए माहाना तनख्वाह। महकमा सेहत से 2 रोज में मतलूबा अफराद की फहरिस्त तलब कर ली गई। हुकूमत ने WHO के ताउन से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वैक्सीनेटर्स की भर्तियों के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं।
डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक 15 जुलाई से 15 जनवरी तक 2023 तक वैक्सीनेटर्स दरकार हैं और ये वैक्सीनेटर्स कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रखे जाएंगे। जिला फैसलाबाद में 75, चन्योट 8, झंग 30 और टोपा-टेक सिंह में 15 वैक्सीनेटर्स रखे जाएंगे। दूसरी जानिब अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में शहर के वाहिद शोबा पोस्टमार्टम में सहूलियात का फुकदान है। मैयतों को महफूज रखने वाले 4 में से 3 फ्रीजर खराब, मैयतें खराब होने का खदशा पैदा हो गया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में शहर का वाहिद शोबा पोस्टमार्टम मुश्किलात से 2-4 क्योंकि मैयतों को महफूज रखने वाले 4 में से 3 फ्रीजर्स खराब हो चुके हैं, जिसके सबब मैयतें खराब होने का खदशा है। 2 फ्रीजर तकरीबन 20 साल कबल और 2 नए फ्रीजर तकरीबन 8 साल कबल लगाए गए थे। 8 साल कबल लगाए गए फ्रीजर्स की मालियत तकरीबन 76 लाख रुपए है। पुराने 2 फ्रीजर में 4 मैयतें और नए फ्रीजर में 6 मैयतें रखी जा सकती है। तहम बिजली, लोड शेडिंग और हीट अप के सबब फ्रीजर खराब हो जाते हैं और महंगे स्पेयर पार्ट्स बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ते हैं। साल 2022 में भी दोबारा फ्रीजर ठीक जा चुके हैं। आपको पता है कि हमारी फ्लक्चुएशन इतनी होती है ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कि उस वजह से वो उनके अंदर खराबी आ जाती है और इंशाल्लाह ताला हम इनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं 4 फ्रीजर एक हफ्ता में ठीक करवा लेंगे क्योंकि गर्मी में इजाफे के सबब फ्रीजर खराब होते हैं। एक बात यह है कि लोड बहुत है हमारे पास जो आती है हमारे पास डेड बॉडीज। इंशाल्लाह ताला ये हम फौरी तौर पे इस पे अमल कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में हम 4 फ्रीजर को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इस वक्त एक फ्रीजर में सिर्फ 3 मैयतें रखने की जगह बाकी रह गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं महकमा तालीम को मिलने वाले फंड्स की छानबीन होगी। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट का सीईओ एजुकेशन ऑफिस समेत फैसलाबाद के 10 सरकारी स्कूलों का ऑडिट करवाने का फैसला। महकमा तालीम फैसलाबाद को मिलने वाले फंड्स की छानबीन होगी और एतराजात की सूरत में ऑडिट पैरे बनेंगे। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट ने सीईओ एजुकेशन ऑफिस समेत 10 सरकारी स्कूलों का ऑडिट करवाने का फैसला किया। महकमा तालीम और स्कूलों को मिलने वाली फंडिंग और उसके कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल का जायजा लिया जाएगा। सीईओ एजुकेशन को तमाम ऑडिट टीमों से ताउन करवाने की हिदायत की गई है। गुलाम मोहम्मद आबाद के मदीना चौक और शाही चौक के गर्ल्स स्कूलों का भी ऑडिट होगा। मिल्लत कॉलोनी और फैक्ट्री एरिया के गवर्नमेंट स्कूल्स का भी ऑडिट किया जाएगा। गुलिस्तान कॉलोनी और इलामा इकबाल कॉलोनी के स्कूलों के फंड्स का भी जायजा लिया जाएगा। भवाना बाजार और अमीन टाउन के गवर्नमेंट स्कूल का भी ऑडिट किया जाएगा। अभी आपको बताएं फैसलाबाद में ईद उल अजहा के 3 रोज कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले सैकड़ों अफराद को अदालतों में पेश कर दिया गया। सिटी पुलिस ने माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए सिरे पाइप भूनने वाले 37 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और दीगर नौहियत के सैकड़ों मुल्जिमान के चालान भी अदालतों में पेश किए गए। अदालत ने मुतादिद मुल्जिमान की जमानतें मंजूर करते हुए रिहा कर दिया। 23 अफराद को 1 रोजा रिमांड पर वापस जेल भेज दिया। सिटी पुलिस की जानिब से माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए सिरे पाइप भूनने वाले 37 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। अभी आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया।
कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। कीमतों में इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 40 रुपए 50 पैसे सस्ता, जबकि पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी लेबर पंजाब इंचार्ज इंसदाद डेंगू इकदाम लियाकत अली चट्ठा का फैसलाबाद का दौरा। डेंगू खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों की दुकानें सील करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने जिला में इंसदाद डेंगू इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लेबर पंजाब इंचार्ज का कहना था कि मानसून मौसम के बायस डेंगू लार्वा की अफजाइश के हवाले से आइंदा एक माह इंतहाई हसास नौयत का है। जानिब डिप्टी कमिश्नर टन्योट नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। मानसून में डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए मुतालिका अफसरान को इकदाम करने की हिदायत कर दी गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जिला सरबराहान नुमाइंदों ने शिरकत की। डीसी ने डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए मुतालिका अफसरान को इकदाम करने की हिदायत की है। एडिशनल DGFDA रिजवान नज़ीर को DGFDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रिजवान नज़ीर को 3 माह के लिए DGFDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। एडिशनल DGFDA रिजवान नज़ीर को DGFDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर टन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने वर्कर दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। म्यूनसिपल इंतजामिया चिन्योट की जानिब से जिला भर के सेंट्री वर्कर्स और सिविल डिफेंस के रजाकारों के एजाज में जोहराना का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज, चीफ ऑफिसर राना मोहम्मद नवाज, वकास हरल, मोहम्मद फैसल, रिफत पाशा, सदर बार एसोसिएशन अशरफ महमूद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी शमशेर हरल शरीक हुए। DSP सिटी मोहम्मद सिकंदर, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, ब्यूरो चीफ सिटी 41 वकार गुम्मन समेत अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना था, जोहराने का मकसद सेंट्री वर्कर्स की खिदमात को सराहना है। सेंट्री वर्कर्स ने ईद पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात काम किया। म्यूनसिपल कमेटीज़ के, इसके अलावा पुलिस के जितने हमारे लोग थे, सिविल डिफेंस के, जिन्होंने ईद के हवाले से काम किया था, तो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिसके लिए हमने ये ज़रूरी समझा कि इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमने अपने पूरे ज़िले के तमाम MCs के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जितने वर्कर्स थे, सिविल डिफेंस के जितने लोग थे, पुलिस के जितने लोग थे, उन सबको बुलाया यहाँ पे, उनको शील्ड्स दी, उनको अच्छा सा एक लंच दिया है। सेंट्री वर्करों का कहना था कि इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इनकी कारकर्दगी और मेहनत को सराहा। खुशी का दिन है कि डी साहब, CO साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, बाकी तमाम अफसरान ने सानू खाना दिता, सानू इज्जत बख्शी है, हौसला अफजाई दी है। ऐसे इन्होंने शुक्रिया अदा कर रहे हैं जनाब। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने बेहतरीन कारकर्दगी वाले वर्करों को यादगारी शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।